অনিক, আমার সাথে দেখা করবি আজকে কোনো একটা সময় 3:40-এর পর আমার সাথে দেখা করবি। तो कल एक डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। একটু 10 ফোঁটা করে, 10 ফোঁটা 10। कल जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें आपको याद होगा मैक्रोफाज, ये, एंड दिस वाज द टी लिम्फोसाइट, है तो। एंड मैक्रोफाज के सरफेस पे इट वाज MHC2, राइट। और उसके साथ, ओ बोशक सर बोल যে, तो देखिए दिस इज द एंटीजन, है ना। एंड हियर गोज, मैंने आपको कहा था दिस इज द CD4, बताया था मैंने, CD4। एंड दिस इज द, दिस वाज द TCR1, है ना, बताया था ना TCR1, TCR1 मान के चलिए। हाँ, हाँ TCR1। तो दिस इज द CD4, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन जब होगा, तो एंटीजन के साथ ये कॉम्बिनेशन जैसे ही हो रहा है माय डियर, तो क्या होगा? व्हेन दिस कॉम्बिनेशन ऑकर, आई टोल्ड यू, दे विल एक्टिवेट द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये बताया था मैंने। और इधर एक न्यूक्लियस है, ये भी बताया था मैंने। और इसमें क्रोमोसोम फॉलोड बाय द प्रेजेंस ऑफ 3 एसेंशियल जीन्स, মনে আছে? A, B and C, 3 जीन्स। एंड आई टोल्ड यू जब ये कॉम्बिनेशन होगा, then this will give a signal, it will send a signal, activation signal to the nucleus, ये बताया था मैंने। it will send an activation signal to the nucleus, I told you this. Next I told you that this will release a chemical which will interact with the receptor of that chemical. That is, the macrophage will release a chemical which will interact with the receptor of the chemical, and the receptor of the chemical is present here. This is the receptor of the chemical. This is the receptor of the chemical, and this chemical is called interleukin. So it is IL-1, and the receptor is interleukin-1 receptor. So when interleukin-1 is interacting with the receptor of interleukin-1, I told you, then it will send another signal to the nucleus. ये कल पढ़ाया था मैंने,
This is another signal that is given to the nucleus. Signal number 1, this is signal number 2. So interleukin क्यों नाम है? Because this is the macrophage. This is a macrophage. And this one is a T lymphocyte. ये क्या है? T cell. This is a T cell. T cell is what? It's a leukocyte. So this chemical is acting between two leukocytes. One is the macrophage, the other is the T lymphocyte. So both leukocytes. So interleukin, ये पढ़ाया था मैंने. It is a cytokine acting between two leukocytes. এখানে, in this particular case, the interaction is between macrophage, which is a leukocyte, and T lymphocyte, which is a leukocyte. So it is interacting between two leukocytes. So I-N-T-E-R. So interleukin. So this is interleukin, and interleukin के बहुत सारे types है. I told you, IL-1 से लेके IL-13 तक होता है. हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. और मैंने कल बताया था और एक चीज CD के बारे में, that is the cluster of differentiation. ये पढ़ाया था मैंने. Cluster of differentiation पढ़ाया था. These are glycoproteins present on the cell surface. किसके ऊपर रहता है? Lymphocytes के ऊपर रहता है. So these are nothing but the glycoproteins, GPs, present on the cell surface. This behave as cell surface of leukocytes, lymphocytes. I'm sorry, lymphocytes, T lymphocytes and B lymphocytes के ऊपर रहता है. And these act as cell surface markers. पढ़े शिलामणि. They act as cell surface markers. They act as cell surface markers, है ना? Identification of the cells में use होता है. They act as cell surface markers. तो ये अगर नहीं होता तो ये possible नहीं था. चलो नेक्स्ट हो गया. अब देखो, दिस कॉम्बिनेशन IL-1 विथ IL-1 रिसेप्टर, ये वाला डन हो गया. इसके साथ अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला हो गया सेल सरफेस मार्कर, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया, सेल सरफेस मार्कर हो गया. सो हियर नेक्स्ट आई टोल्ड यू अ कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल विल कम. दिस कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल B7. Contact molecule B7, I told you this. This is the contact molecule that will come. है ना? होने अच्छे तो रहे, कल पढ़ाया था मैंने. कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल B7, ये भूल भी सकते हो. मैंने बताया था कि यू मे नॉट रिमेंबर दिस. कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको दिखाया. तो दिस इज द कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल B7 that will interact with the receptor, that is CD29. ये बताया था मैंने, ये CD29 है. And this is the contact molecule B7. Contact molecule B7. And ये जो है मैक्रोफाज, ये टी लिम्फोसाइट है. कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल B7 CD29. হ্যাঁ ঠিক আছে. আর এইটা ছিল MHC2. This is what? This was MHC2. This was the antigen. This is TCR1. याद है? And this is the CD4. याद है? ये करा था हम लोगों ने, ये कॉम्बिनेशन था, और ये कॉम्बिनेशन के वजह से सिग्नल आया था. वेरी मच इन द सेम वे ये कॉम्बिनेशन के वजह से सिग्नल आएगा. अगेन द थर्ड सिग्नल विल बी हियर. So there are three signals, 1, 2 and 3. There are three signals.
ये तीन सिग्नल जैसे ही आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीन सिग्नल्स जैसे ही आएंगे, দে উইল স্টিমুলেট অর অ্যাক্টিভেট হোয়াট, দ্য নিউক্লিয়াস। তাই তো? কি করবে? নিউক্লিয়াসে স্টিমুলাস দিচ্ছে, তো সিগন্যালস আর গোইং টু দ্য নিউক্লিয়াস, सो न्यूक्लियस विल गेट एक्टिवेटेड। तुम लोग का एग्जाम है क्या? कब है? 8 तारीख, नेक्स्ट वेनेसडे। वो इसीलिए एब्सेंट ज्यादा हो गया क्या? आज एब्सेंट क्यों है इतना लोग? টেস্ট, ওই জন্য আসেনি। বাহ, বুঝে গেলাম, आई डिड नॉट नो। ঠিক আছে, চলো, अच्छी बात। তুই এসছিস, আমি খুশি হলাম। তুই কি জানতিস ফিজিক্স টেস্ট হবে? নাকি না জেনে এসে গেছিস? ভুল করে এসে গেছিস? কিন্তু দিবি। হ্যাঁ, দিতে হবে, বাট দিতে হবে। হ্যাঁ, পারবি না কেন? ভুল করলেও সেটা ঠিক করতে হবে কি করে, সেটা শিখতে হবে তো। এইসব বাজে কথা বলবি না। ভুল হলেও সেটাকে শিখতে হবে তো, যদি ভুল হয় কেন হচ্ছে সেটা দেখতে হবে তো। বাইরে যেতে দেবো না কাউকে আমি, মানা করে দেবো। এই, আজ কিন্তু যেতে দেবো না আমি, জানিস तो। हम्म। चलो, ये हो गया। अब देखो बेटा, तीन सिग्नल जब आया, ध्यान से देख, तो व्हाट विल हैपन? ये जो जीन ए है, ध्यान से देखिए, ये जो जीन ए है, दे विल प्रोड्यूस अ केमिकल, है ना? जीन ए कहाँ का है? टी लिम्फोसाइट का है। इट विल प्रोड्यूस अ केमिकल which is called interleukin 2. This is the chemical. Let's consider this is the interleukin 2. And this interleukin 2 will be produced here. And gene B will produce another protein, which is the receptor of this interleukin, that is interleukin 2 receptor. तो हम लोग इसको receptor of the interleukin कहते हैं. Let's consider this is the receptor of the interleukin. So this is IL-2 receptor. And this interleukin 2 will bind with interleukin 2 receptor. তাহলে why it is called interleukin, my dear? ध्यान से देख, why it is called interleukin? Because it is self stimulatory और ऑटो कैटालाइटिक इन नेचर। मतलब टी लिम्फोसाइट से ही निकला और टी लिम्फोसाइट को ही एक्टिवेट कर रहा है। सो इट इज एन ऑटो कैटालाइटिक पाथवे, वी कॉल इट ऑटो कैटालाइटिक, ऑटो कैटालाइटिक पाथवे, समझे? और सेल्फ एक्साइटेटरी इन नेचर। कैसे सेल्फ एक्साइटेटरी हो गया? Because it is released, IL-2 released by the T lymphocyte and acts on the T lymphocyte. ताले released from T lymphocyte, act on the T lymphocyte. इसका मतलब क्या है? Again interleukin. वन लिम्फोसाइट से, माने वन ल्यूकोसाइट से निकला और उसी ल्यूकोसाइट को अटैक किया, समझे ना? लेकिन अंदर ही अंदर नहीं किया, पहले वो रिलीज किया बाहर, फिर वो एक्टिवेट हो, वो अटैच होगा टू द रिसेप्टर, तब जाके काम होगा, उससे पहले काम नहीं होगा। सो मैंने, व्हाई इट इज ऑटोकैटालाइटिक? बिकॉज इट इज रिलीज बाय द सेंस, released by the T lymphocyte, by the T cells, and activate the same T cell after binding to its receptor, binding to its receptor on the T cell. ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आया? एंड देन it will activate, ये combination जैसे ही हो गया, then it will activate the nucleus with signal number 4, and activate करने के वजह से C gene से produce होगा another molecule, another chemical which is called interleukin 3. It is also called TCDF, full name T cell differentiation, T cell differentiation factor. So that is TCDF और T cell differentiation factor. इसका मतलब पहले हमने कितने सारे टी सेल्स में, मिलियंस ऑफ टी सेल्स में एक को सिलेक्ट किया था, दैट वाज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। अब ये जो क्लोनली सिलेक्टेड टी लिम्फोसाइट है, जिसको अभी रिएक्शन में के लिए सिलेक्ट किया, उसी टी लिम्फोसाइट का बहुत सारे टाइप्स है, उसको डिफरेंशिएट करवाना पड़ेगा, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी किलर, टी मेमोरी। तो 4 টাইপ অফ টি লিম্ফোসাইটস को बनाना पड़ेगा फॉर दैट পার্টিকুলার टी। ধরো অনেকগুলোর মধ্যে একটা টি সেলকে আমি আইডেন্টিফাই করেছি, अब उस टी सेल को तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करवा के उसी टी सेल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वेराइटीज बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो टी साइटोटॉक्सिक है या तो टी किलर है, वही तो मारेगा एंटीजन को।
आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? आउट ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट ओनली वन इज सिलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड क्लोनल सिलेक्शन। अब उसी क्लोनली सिलेक्टेड टी लिम्फोसाइट को एक्सपैंड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करवाना पड़ेगा, उसीलिए टीसीडीएफ, टी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर। एम आई क्लियर? ठीक तो? माथा ढुकेছে? So what I said. So what will it do? This is interleukin 3. So it will help in differentiating the clonally selected T lymphocyte. It will help in differentiating the clonally selected T lymphocyte. That is called clonal expansion. Called clonal expansion. सपोज TCR1, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखो, समझ में आना चाहिए हम लोगों को। देखो TCR1, TCR1, তাহলে TCR1 যেটা আছে इसका टी हेल्पर चाहिए मुझे। TCR1 लगाने वाला TCR1 है, उसके लिए उसका टी मेमोरी चाहिए मुझे। उसी TCR1 है मेरे लिए, आपको समझ में आ रहा है, टी सप्रेसर आना चाहिए। और वही TCR1 है, उसका टी किलर या तो टी साइटोटॉक्सिक होना चाहिए। आपको समझ में आया? आपको समझ में आया मैंने क्या करा? तो टी किलर और टी साइटोटॉक्सिक उसी उसी क्लोनली सिलेक्टेड टी लिम्फोसाइट का ही तो होना चाहिए माय डियर। तो टी किलर और टी साइटोटॉक्सिक होना चाहिए। क्लियर हो गया? दिस इज डिफरेंशिएशन, बिकॉज हर एक टी लिम्फोसाइट अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन जनरलाइज क्या क्या है? देखो हर किसी का रिसेप्टर TCR1 है। ऐसे कई सारे थे, जैसे बहुत सारे थे, लेट्स कंसिडर उसको फिर एक बार। ये TCR1 मान के चलिए, ये हो गया TCR2, ये हो गया TCR3, ये हो गया TCR4। तो दिस वाज TCR1, दिस वाज TCR2, दिस वाज TCR3, पढ़ाया था मैंने, दिस वाज TCR4। और आउट ऑफ दिस ओनली TCR1 इज सिलेक्टेड, सो ओनली दिस इज सिलेक्टेड। ये TCR1 ही सिलेक्टेड हुआ। ओनली द टी लिम्फोसाइट, only the T lymphocyte with TCR1 is selected out of many, out of many. This is called clonal selection. ये कल पढ़ाया था मैंने आपको। अब इसी क्लोनली सिलेक्टेड टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन और नंबर इंक्रीज होगा, वेराइटीज इंक्रीज होंगे। एम आई क्लियर? तो उसी का वेराइटीज इंक्रीज हो रहा है, और ये नाम है। और उसमें आपको पता ही है, हेल्पर हो गया, मेमोरी हो गया, सप्रेसर हो गया, किलर और साइटोटॉक्सिक हो गया। एम आई क्लियर माय डियर? किरे घुमोचिस नाकि? समझ में आ गया हर किसी के लिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर माय डियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज एग्जाम होगा इसीलिए सब घर में बैठा हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन माय डियर? किसी के मन में कोई भी दुविधा? इज इट ओके बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो ये जो बना, अब ये कॉम्बिनेशन के वजह से दे विल, अब सपोज टी किलर कुड नॉट डिस्ट्रॉय द एंटीजन, है ना? लेट्स कंसिडर, इफ इट इज सो फाउंड, इफ इट इज सो फाउंड, if the T lymphocyte could not destroy the antigen, then as we know, yesterday हम लोगों ने पढ़ा था that they have they have self limitation, they know their limitations, so they will shift the responsibility to another one. So then due to their property of self limitation, they will shift the responsibility to the B lymphocytes। ये किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करेगा?
बी लिम्फोसाइट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करेगा, अच्छी बात है। सो दे विल शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी लिम्फोसाइट्स। अब जाके बी लिम्फोसाइट्स को वो ट्रिगर करेगा, वो एक्टिवेट करेगा। तो बी लिम्फोसाइट को अगर वो एक्टिवेट करा तो कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा। तो बी लिम्फोसाइट्स को अगर वो एक्टिवेट करे तो हम लोग अब बात करेंगे। लेट्स कंसिडर दिस इज द बी लिम्फोसाइट, लेट्स कंसिडर दिस इज द बी लिम्फोसाइट और दिस इज द बी लिम्फोसाइट। अब ये बी सेल में क्या है, दिस इज द एंटीजन, ये एंटीजन को शिफ्ट करेगा, दिस इज द एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है माय डियर, दिस एंटीजन विल बाइंड टू अनदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिखता है ये, दिस इज CD79 and this one is the antigen, as you know. Here goes the antigen and here goes CD79. Am I clear? And this is the nucleus, this is the nucleus, और इसमें एक जीन is this। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन जब हुआ, what will happen, this will trigger the glycoprotein, that is intrinsic protein। तो ये intrinsic protein को stimulate करेगा and this will send one signal to the nucleus, that is signal number 1। so it will activate the intrinsic protein, it will send a signal, that is signal number 1। समझ में आ गया। and the same T lymphocytes, ये जो T lymphocytes है, मैं जनरलाइज करा, ये सबको एक साथ जनरलाइज करा मैंने। ये जो T lymphocytes है माय डियर, ये जो T lymphocytes है, this will send another chemical। This chemical is called, let's consider this is the chemical, let's consider this is the chemical, this chemical is called IL4। अभी IL3 था, अभी this chemical is IL4, interleukin 4, because एक T lymphocyte एक B lymphocyte को स्टिमुलेट करेगा, उसके लिए केमिकल चाहिए। That stimulatory chemical is interleukin, because T lymphocyte is a leukocyte and B lymphocyte is again a leukocyte, so one leukocyte stimulating another leukocyte through a chemical which is a cytokine called interleukin, তাই তো। তাহলে এই interleukin দিয়ে স্টিমুলেট করছে, and then what happens my dear, ध्यान दीजिएगा। Let's consider this is the receptor, है ना, present here on the surface। let's consider this is the receptor। so if this is interleukin 4, so here goes interleukin 4 receptor 4R on the surface of the B lymphocyte, and this combination results in the triggering of this second signal, and this signal is signal number 2। so पहले signal number 1, फिर दूसरे बार signal number 2। तो दो signals दिया किसको, न्यूक्लियस को। and then from the gene, ये जो gene है, this gene will produce another chemical, again that chemical is IL5, which is also called BCDF। BCDF समझ में आ गया, B cell differentiation factor, क्योंकि TCDF था T cell differentiation factor। Am I clear? so ध्यान दीजिएगा, so it is BCDF or the B cell differentiation factor। so it is B cell differentiation factor। तो इट इज बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर, है ना। अब ये देखिए IL5 और बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर, तो ये IL5 और बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर जो है, दिस विल हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स। चलिए देखते हैं। सो दिस विल हेल्प इन द, दिस विल ट्रिगर डिफरेंशिएशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स। सो differentiation of the B lymphocytes, my dear students। so differentiation of the B lymphocytes, और डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, देखो टी लिम्फोसाइट का चार टाइप्स होता है, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, टी किलर और साइटोटॉक्सिक। लेकिन बी लिम्फोसाइट का केवल दो टाइप्स है, बी मेमोरी एंड बी इफेक्टर, है ना, मैंने पढ़ाया था आपको। सो इसका दो टाइप्स है माय डियर, वन इज बी मेमोरी, द अदर इज बी इफेक्टर। ये मैंने आपको पढ़ाया था, दिस इज बी इफेक्टर एंड दिस वन हैपेंस टू बी बी मेमोरी। तो मेमोरी सेल चाहिए आपको, मैंने मेमोरी सेल्स का तवज्जो आपको बताया था, because immunologic memory was the concept that I told you, because the longevity of the memory cells is determining कि वो डिजीज कितना दिन तक आपको प्रिवेंट, वो एंटीबॉडी कितने दिन आपको प्रिवेंट करेगा, है ना। ये डिस्कशन हमने किया था, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स एनामनेस्टिक पढ़ा था हम लोगों ने, एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड टाइम पढ़ाया था ना। तो दिस वाज दैट। तो इसीलिए मेमोरी इज वेरी, मेमोरी सेल्स का प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफेक्टर सेल्स। अब ध्यान दीजिएगा, बी इफेक्टर क्या करेगा, बी इफेक्टर विल ट्रिगर the synthesis of the plasma cells। it will trigger the synthesis of plasma cells with the help of what,
इंटरल्यूकिन 6। देखो इंटरल्यूकिन 5 हो गया, इंटरल्यूकिन 6 आ गया। इट विल सिंथेसाइज, इट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइज करेगा। एंड देन प्लाज्मा सेल्स अगर सिंथेसाइज करेगा, प्लाज्मा सेल्स के बारे में आपको याद है? प्लाज्मा सेल्स क्या है? इसको कहते हैं कार्टविल सेल्स। These are called plasmatocytes. আমি পড়িয়েছিলাম when I taught you सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एनिमल टिश्यू में, उसमें मैंने प्लाज्मा सेल्स के बारे में चर्चा किया था। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एनिमल टिश्यू तो हमें पढ़िएছিলাম, वहां पे हमने प्लाज्मा सेल्स के बारे में चर्चा किया था। एंड दीज आर कार्टविल सेल्स, कार्टविल अपीयरेंस। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर, प्लाज्मा सेल्स आर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मेटोसाइट्स, प्लाज्मेटोसाइट्स, है ना? और दे आर आल्सो कॉल्ड कार्टविल सेल्स। इसका यूनिकनेस जो है, इसका यूनिकनेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परसेंटेज इज वेरी हाई, गोल्गी apparatus का परसेंटेज इज वेरी हाई, है ना? ये प्लाज्मा सेल्स का यूनिकनेस है। एंड दिस प्लाज्मा सेल्स, अच्छा ये जो प्लाज्मा सेल सिंथेसिस होता है माय डियर, दिस इज एट द रेट 60,000 पर मिनट। इतने ज्यादा प्लाज्मा सेल्स ये सीक्रेट करता है माय डियर, प्रोड्यूस करता है। और ये जो प्लाज्मा सेल्स है, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? These plasma cells will result in the formation of plasma proteins. So it will help in the formation of proteins. क्या क्या प्रोटीन बनाएगा? आपको पता है कि प्रोटीन्स क्या क्या है? तो एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये तो आपको पता है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, ये तो पता है आपको। These are the plasma proteins that are produced. ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन्स बनते हैं। एंड यू सी ग्लोब्यूलिन जो है, इस ग्लोब्यूलिन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं माय डियर, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। एंड फ्रॉम गामा ग्लोब्यूलिन स्पेसिफिकली ट्रिगर्ड एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड। सो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द गामा ग्लोब्यूलिन। तो मैंने क्या कहा, इधर से जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम नहीं कर पाया, देन इट शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल खा, पानी पी। हाँ, मैंने क्या कहा, जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इट शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ह्यूमर, द फ्लूइड ऑफ द बॉडी। फ्लूइड क्या है? प्लाज्मा इज द फ्लूइड ऑफ द बॉडी। सो फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी, तो फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी जब यहां से शुरू हो जाएगा, यहां से जब शुरू हो जाएगा, दिस इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, है ना? दिस इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दिस इज द ह्यूमोरल इम्यूनिटी माय डियर स्टूडेंट्स, है ना? और ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी विच इज मीडिएटेड बाय फ्लूइड और ब्लड। मतलब क्या है? मीडिएटेड बाय बॉडी फ्लूइड और ब्लड, मीडिएटेड बाय बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड और ब्लड, मीडिएटेड बाय बॉडी फ्लूइड और ब्लड, है ना? एंड ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड antibody mediated immunity, also called antibody mediated immunity, full form antibody mediated immunity, है ना बेटा? तो एक चीज याद रखिएगा, ये AMI आपके मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है AMI, और आपके इंटरनल एग्जाम का भी क्वेश्चन होगा, ये नीट का भी लेवल का क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज AMI। लोग की AMI देखे भय पेज है, बट AMI इज नथिंग बट ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है? तो एंटीबॉडी एंड दिस एंटायर पार्ट जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा था अभी तक, ये टोटल जो पार्ट है, ये टोटल पार्ट whatever we have discussed till now, this is a part of cell mediated immunity, right? So ये जो है, this entire part is the cell mediated immunity, है ना? So ये total part is cell mediated immunity, आपको तो ये पता ही है। This is CMI और the cell mediated immunity, this is the CMI और the cell mediated immunity, है ना? So देखो cell mediated immunity जो है, that will shift its responsibility to the fluid part of the blood, that is antibody, है ना? तो एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सेल्फ लिमिटेशन ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मैंने पढ़ाया था। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहा था? बिकॉज दैट एंटीबॉडी इज एंटीजन स्पेसिफिक। दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, था ना? दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो ये टोटल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंडर आता है माय डियर स्टूडेंट्स। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको पता है, दिस वाज कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, है ना? This was called specific immunity, और specific immunity अगर होगा बेटा, this is why it is specific, since specific antibodies are
produced against specific antigens। तो स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए इट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, बस स्पेसिफिक इम्यूनिटी। बट innate immunity or inborn immunity is non-specific, because in all conditions of infection ultimately the same system will work, लेकिन इधर antibodies become different at every time, है ना। So this is the difference my dear students, and you see the T lymphocyte is triggering the B lymphocyte। B lymphocyte ऐसे नहीं आता। तो सबसे पहले सीक्वेंस अगर हम लोग सोचेंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर सीक्वेंस हम लोग सोचते हैं तो क्या है, देखो एंटीजन आया, उस एंटीजन के रेस्पॉन्स में क्या क्या एक्टिवेट हो सकता है, तीन चीजें एक्टिवेट हो सकता है। एक इओसिनोफिल हो सकता है, एक्टिवेट क्या क्या हो सकता है, इओसिनोफिल हो सकता है, फैगोसाइटिक सेल है, मोनोसाइट हो सकता है, वेरी गुड, न्यूट्रोफिल हो सकता है, ये तीन हो सकता है माय डियर। ध्यान से देखिए, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, देखो ये हो गया। अब मोनोसाइट्स इन प्रेजेंस ऑफ द, अगर मोनोसाइट एक्टिवेटेड हुआ तो ये मैक्रोफाज में कन्वर्ट होगा, तो मैक्रोफाज आ गया। और मैक्रोफाज 96% ऑफ ऑल दीज आर मैक्रोफाज फैगोसाइटिक सेल्स जो इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। इसको छोड़ के और दो टाइप ऑफ सेल्स है जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, एक है डेंड्राइटिक सेल्स, एक है इंटरजीजेटिंग सेल्स। तो these are the three cells actually immune system में there are three kinds of cells which become माने large cells और macrophagic cells, जिसको हम लोग, अच्छा একটা কথা বলা হয়নি, this is called, these are called APC। APC माने antigen presenting cell, because ये जो macrophage है this was presenting the antigen on the surface। since this macrophage, একটা question করি, since this macrophage, ध्यान से देखिएगा online students, since this macrophage is presenting the antigen on its surface, तो इसीलिए ये रीजन है, इसका assertion क्या है, macrophage is also called APC। famous question, APC কেন, antigen presenting cell। assertion reasoning देखो, antigen presenting cell my dear students, because it is presenting the antigen on its surface, ওই জন্যই তো এটা antigen presenting cell। so here the macrophage is antigen presenting cell, so this macrophage happens to be the APC। তোমাদের लेवले it is the APC, समझे ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोग, अच्छा आप लोग तो अचीवर में, आप लोग ओलंपियड का टेंशन नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक अब लिख देते हैं। another two APCs are dendritic cells, আরেকটা হচ্ছে इंटरडिजिटेटिंग सेल्स। हालांकि आप लोगों के लेवल पे 96% ऑफ ऑल एपीसीज आर मैक्रोफाज, सो हम लोग मैक्रोफाज को ही कंसीडर करेंगे। ये दोनों जो मैंने लिखा, यू कैन फॉरगेट दिस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिकली दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। That antigen presenting cell can be of three types. Number one, it is the macrophage. Number two, it is the interdigitating cells. Number three, it is the dendritic cells. Am I clear? So these three can be the antigen presenting cells, my dear students। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैक्रोफाज ने क्या करा, एंटीजन को प्रेजेंट करा और टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट द टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट ने क्या करा, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करा। इफ फेल्स, अगर टी लिम्फोसाइट फेल करा, इसको स्टिमुलेट करेगा। बी लिम्फोसाइट ने क्या करा, कोई फेल वेल का चक्कर नहीं है, क्योंकि बी का कोई साइटोटॉक्सिक नहीं है, बी का मेमोरी और इफेक्टर है। तो बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, और प्लाज्मा सेल्स जैसे ही बन गया तो वहां से एंटीबॉडीज बनना चालू हो गया। একটা জিনিস আমি তোমাদের বলি, ये इंपॉर्टेंट है माय डियर, आर्टिफिशियली अगर हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिफिशियली अगेन, आर्टिफिशियली अगर हम लोग, माने विद इन द बॉडी ऑफ माइस, है ना, माइस के अंदर, ट्रांसजेनिक माइस के अंदर अगर आर्टिफिशियली हम लोग कोई पर्टिकुलर एंटीजन को इंट्रोड्यूस करें, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिफिशियली हम लोग कोई ट्रांसजेनिक माइस के अंदर कोई एंटीजन को इंट्रोड्यूस करें, तो वो अगर उस एंटीजन के खिलाफ प्लाज्मा सेल बनाएगा, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स हम लोग अगर आर्टिफिशियली बना सकते हैं, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एंटीबॉडीज हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियली अगेंस्ट दैट एंटीजन। समझ में आया? अगर ऐसा होता है, देन वी कैन से दैट दोज एंटीजन, एंटीबॉडीज जितने भी बना, जो दोज एंटीजन एंटीबॉडीज जितने भी बना, दे हैव बीन क्लोन्ड फ्रॉम अ सिंगल एंटीजन। क्या कहा मैंने?
those antibodies जो हमने artificially synthesize करा, they had been cloned from a single antigen. इसको कहते हैं monoclonal antibody formation. And the technology involved is called hybridoma technology. Again, online student ध्यान दीजिएगा मेरा बात. मैंने कहा कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल কি হলো চোখ জ্বলছিস কেন ঘুম পাচ্ছে হ্যাঁ চোখে জল দিয়ে তোর তো সবেতেই প্রবলেম হ্যাঁ বলবি নিঃশ্বাস নিতে প্রবলেম নিঃশ্বাস নিতে অ্যালার্জি হয় জল খেলে অ্যালার্জি হয় এসব বল মন দিয়ে শোন तो मैंने क्या कहा अगर ट्रांसजेनिक माइस के अंदर हम लोग आर्टिफिशियली कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस करा एंड देयर आफ्टर उस ट्रांसजेनिक माइस के अंदर अगर आर्टिफिशियली बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स क्रिएट हुआ देन उसी ट्रांसजेनिक माइस के अंदर आर्टिफिशियली बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन. So this means those new antibodies are all cloned from a single antigen. Taito? So that is called monoclonal antibodies. Am I clear? The technology involved is called hybridoma technology. NCERT खोलो. Cancer. कैंसर खोलो. कैंसर का जो पेज है उसका लास्ट लाइन एकदम लास्ट है ये पेज नंबर 141 নতুন বই. अगर न्यू किताब है तो 141, ओल्ड किताब है तो কত রে আগের পাতা ওই পাতা কত 157 157 এর একদম লাস্টে যা পুরনো বই হলে 157 নিউ কিতাব 141 एवरीवन ओपन अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिए उसमें अब देखिए बेटा उसमें लास्ट सेंटेंस जो है पढ़तो रंगीत एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन बोलो are also used for detection of certain cancers. ठीक. So this is one of the method by which अगर हम लोग artificially antibody produce करा against that particular antigen, we can also call that monoclonal antibody formation. अच्छा आरेकटा जिनिस दाঁড়াও. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो है इम्यूनोथेरेपी है एनसीईआरटी में लिखा हुआ. देखो ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन. पढ़ो এই জায়গাটা नेक्स्ट এই জায়গাটা ट्यूमर सेल्स to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers such as interferon. तो such as interferon happens to be biological response modifiers. इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था पहले ही. इसको छोड़ के the immune reaction which is used to create antibodies against cancer antigen, antibodies against a particular antigen, that is called hybridoma technology. तो এইটার রেফারেন্সে তোমরা মনে রাখবে monoclonal antibody formation by hybridoma technology. ये जो युवराज सिंह का जो कैंसर था उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था was by this method. So it is hybridoma technology my dear, and with this is successful, this is fairly successful, लेकिन ये it's a very expensive treatment as of now, but hybridoma technology is a good method. বুঝতে পেরেছো? So monoclonal antibody formation is used and this is made in the transgenic mice, है ना? We can use transgenic mice, we can use transgenic mice for the production of antibodies artificially. monoclonal antibody লিখেছি না monoclonal antibody formation. monoclonal কেন? Why it is monoclonal? Antibodies are produced against a single antigen, है ना? are cloned from a single antigen. Why monoclonal? इसका रीजन क्या है? ये अगर assertion है antibodies are produced cloned बोलबो, cloned from a single antigen. देख लीजिए my dear students, this concludes the discussion
ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। इस ये जो डिस्कशन है इसका टाइटल क्या है? मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। इसका टाइटल है मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। देख लीजिए एक बार, फिर इसका एक फोटो खींच के डाल दीजिए ग्रुप में। ध्यान से पहले इसको देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन हो गया ये काम खत्म किया हम लोगों ने। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फोटो लीजिए और इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको आप भूल जाओगे तो इसका रिकॉर्डिंग फिर से देख लीजिएगा, है ना? जो भी मैंने कहा इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। এখানে দাঁড়িয়ে ছবি হবে? उस बेंच से फोटो आता है और तुम बैठे बैठे फोटो ले रहे हो, उधर से लो। उस जगह से मैं जो दिखा रहा हूं उस जगह से इस रूम में अच्छा फोटो आता है बेटा, उस जगह से, कैटरपिलर के सामने से। हाँ, अब पूरा फोटो सही आएगा। मैं सबसे ज्यादा क्लास इसी रूम में लेता हूं तो मुझे पता है। ठीक है, अब दे दो ग्रुप में, सही से एचडी फोटो करके दे दो ताकि हर कोई देख पाए। चलिए, ये डन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द एंटीबॉडीज, है ना? अब हम लोग एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स कमेंस आवर डिस्कशन ऑन एंटीबॉडीज एंड द स्ट्रक्चर देयर आफ्टर। सो एंटीबॉडी, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो एंटीबॉडी है माय डियर, एंटीबॉडी कौन सा क्रोमोसोम से बनता है माय डियर? ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6। जैसे एमएचसी बनता है ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 से, एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6। इसका मतलब अगर प्लाज्मा प्लाज्मा सेल से प्लाज्मेटोसाइट से एंटीबॉडी बन रहा है तो प्लाज्मेटोसाइट्स के अंदर ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 है, एंड फ्रॉम दैट क्रोमोसोम एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। एम आई क्लियर? अब द सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी का फॉर्मूला है एमगेड। क्या है? एमगेड, MGADE। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले बनता है आईजीएम, फॉलोड बाय आईजीजी, তারপরে आईजी ए, आईजीटी एंड आईजीई। एम आई क्लियर? एनसीईआरटी তে आईजीडी লেখা নেই, एनसीईआरटी তে आईजीडी इज नॉट मेंशन्ड, लेकिन आपके मॉड्यूल है आप लोगों के सामने। তোকে আমি কোনদিন তাড়িয়ে দেবো ক্লাস থেকে? I will throw you out of the class, or literally I will throw you because I have that capacity to throw। ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো ক্লাস থেকে। নিজেকে তো ক্যারি করে নিয়ে আসিস, তাহলে বই আনতে কষ্ট হয়? কোথায় গেল? কি বললাম রে? কি জিজ্ঞেস ও, হ্যাঁ, আমি ভুলেও যাই। হ্যাঁ, দাঁড়া, এখানে एनसीईआरटी में आईजीडी मेंशन नहीं है, देखो, नहीं है ना? पेज नंबर 135 है ना? न्यू बुक बुक में, ओल्ड बुक में कितना? 151, 151 में नहीं है, लेकिन अपने मॉड्यूल में देखो आईजीडी के बारे में लिखा हुआ है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है आईजीए आईजीजी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो चार्ट है एनसी आपके मॉड्यूल में, ये चार्ट को एक बार देखना पड़ेगा आपको। ये खोल के रखिए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। चलिए इसको इरेज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स इरेज दिस।
हाथ दर्द हो गया, कहीं से घूम दर्द होता है। अच्छा, एनसीईआरटी में वो लिख दिया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उस जगह पे, कैंसर के जगह पे लिख दिया ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, वो लिख देना। वो जब पढ़ाऊंगा मैं उस टाइम पे फिर मैं पूछूंगा आपसे। चलिए, नेक्स्ट डिस्कशन क्या है माय डियर? अभी एंटीबॉडीज के बारे में चर्चा करनी है। एंटीबॉडीज, antibodies are synthesized by the human chromosome number 6. तो ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 है ना, उससे एंटीबॉडीज सिंथेसाइज होंगे। सो एंटीबॉडीज, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन एमगेड, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना माय डियर, एमगेड। सो आईजीएम इज फर्स्ट टू बी सिंथेसाइज्ड, उसके बाद आईजीजी, आईजीए, आईजीडी एंड आईजीई। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ पेंटामर, this is a pentamer, this is a monomer, this is dimer, this is monomer, and this one is a monomer. ठीक ठीक, आईजीडी फंक्शन सब থেকে কম জানা যায়, ঠিক है ना, लेकिन आईजीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। এসিটা চালা, এসিটা বন্ধ করে রেখেছিস, মরে যাবো তো। तो आईजीएम जो है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एंटीजन। याद रखिएगा बेटा, आईजीएम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एंटीजन, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एंटीजन antibodies, I'm sorry. And IgG, this is the most abundant, this is the most abundant antibody, है ना। 70% of all the antibodies are IgG, 70% of all the antibodies are IgG. So 70% of all antibodies, of all of total antibodies, है ना, that is IgG. IgA is a dimer, this is very important. IgA is a, अच्छा IgM থেকে আরেকটা কোশ্চেন আছে মাই ডিয়ার। आप लोग ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ते हो, जहां पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस अपना सिलेबस का है, जिससे नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो तो ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब एंटीबॉडी बिहेविंग लाइक एंटीजन, ताई तो उसी को ऑटो एंटीबॉडी कहते हैं हम लोग। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो रूमेटॉइड फैक्टर है, जो प्रोड्यूस होने के वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है माय डियर, दिस रूमेटॉइड फैक्टर इज आईजीएम टाइप। ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है माय डियर। सो ये जो इवन the antibodies that are produced against the antigen, that is ABO system, RH system, তাহলে ব্লাড আরবিসির উপর অ্যান্টিজেন আছে, তো उसके अगेंस्ट में भी जो एंटीबॉडी फॉर्म होता है, that is also IgM टाइप। এটা তোমরা জানো কিনা আমি জানি না, लेट मी टेल यू दिस वे दैट IgM इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। जनरली हम लोग इस पे तवज्जो नहीं देते उतना, लेकिन याद रखिएगा IgM के लिए हम लोग बात करेंगे, दैट इज रूमेटॉइड फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर, rheumatoid factor. This is IgM type. This is IgM type. This is an antibody which is IgM type. So rheumatoid factor, it is an antibody which is IgM type. বুঝতে পেরেছো? ये एग्जाम का क्वेश्चन। Even antibodies produced against the RH incompatibility हो गया, या blood grouping incompatibility हो गया, that is also IgM type. तो ये IgM टाइप, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है।
एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, सो दीज आर ऑटो एंटीबॉडीज। ये जो है, दिस एंटीबॉडी इज एन ऑटो एंटीबॉडी एंड दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। ये तो आपको पता ही है। IgA is a dimer, IgD is a monomer, IgE का नंबर कब इंक्रीज होगा? ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, पढ़ाया था मैंने, ड्यूरिंग एलर्जी ड्यूरिंग एलर्जी एंड ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, ड्यूरिंग एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, है ना? এটা হলো লিস্ট ইন নাম্বার, दिस इज लिस्ट इन नंबर, IgD। समझ में आया? अच्छा, IgA, it is transmitted, IgG is transmitted to the transplacental barrier, transferred, hey teratogen आदि harmful substances, IgG harmful substance, कुछ भी, transferred through the transplacental barrier, है ना? And IgA is transferred through colostrum, है ना? Is transferred through colostrum. In both the cases, it is transferred from the mother to the fetus, তাই তো? Hey, sorry, mother to the fetus. I'm sorry. Mother to the fetus is this one, and this is mother to the infant, neonate or infant, তাই তো? समझ में आ गया? And both of these contribute to passive immunity, তাই তো? This is passive immunity in which antibody directly enters into the host. Host कौन है? Either fetus or the neonate or the infant. वो तो host है इस कंडीशन में, ताई तो? So antibody directly insertion हो रहा है, इसका मतलब ये passive immunity है। अब एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग अगर ध्यान दें, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सो इसमें देयर आर हेवी चेन्स, ये लिखছি उल्टा पल्टा, there are heavy chains, my dear students, heavy chains and light chains। तो हेवी चेन्स एंड लाइट चेन्स, हेवी चेन में कितना है? 2 इन नंबर, लाइट चेन में कितना है? 2 इन नंबर, इसलिए हम लोग इसको H2L2 कहते हैं। Therefore it is H2L2 in nature, তাই তো? अब ये एंटीजन मॉलिक्यूल, इट इज ऑफ द शेप ऑफ वाई, এরকम देखते हैं, ऐसा दिखता है ना? तो दिस इज द हेवी चेन एंड दिस इज द लाइट चेन, आपको पता है बहुत अच्छी तरह से। दिस इज लाइट, दिस इज लाइट, दिस इज हेवी, दिस इज हेवी, ये आपको पता है। तो 2 हेवी 2 लाइट हो गया। अब अगर हम लोग कहते हैं कि कोई पेंटामर है, तो हम लोग उसी पेंटामरिक फॉर्म को अगर हम लोग पढ़े तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेंगे माय डियर। दिस इज द पेंटामरिक फॉर्म, this is the pentameric form, this is the pentameric form, this is the pentameric form, ये पेंटामरिक फॉर्म है। तो 4 मोनोमर्स है, और इसको कनेक्ट कौन करेगा? it is connected by the joining chain, this is the J chain or the joining chain, तो J for joining chain, है ना बेटा? ये है। डाइमर के बारे में भी आप अगर बात करोगे तब भी बहुत इजी है। so this is the dimeric form my dear, this is the dimeric form my dear, so this is again the J chain, right? So this is again the J chain or the joining chain। so whenever these are connected, तो ये antibody molecules अगर connected होंगे my dear, so it will be connected with the help of the joining chain or the J chain। अब एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस आर रियली इंपॉर्टेंट, तो हर एक स्ट्रक्चर के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, কতগুলো ইউনিক জিনিস দেখাবো, 2-3টে ইউনিক জিনিস দেখাবো যেগুলো তোমরা बार-बार आपने देखा भी है लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए, जरा देखे। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, अच्छा मेरा जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम योर एनसीईआरटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही तरह का है। डिफरेंस ये है कि मैं इस पैराटोप जो है, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो उस तरफ करा,
और आपके इधर अंदर की तरफ करा, मैंने एनसीईआरटी में। तो जो भी करो एक ही बात है। मैंने इधर करा, ये देख, समझ में आया? आई डिड इट हियर, दिस वन इज द पैराटोप, है ना? बात एक ही है। ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये जो रीजियन है, दिस रीजियन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस रीजियन इज अ प्रोलीन रिच पार्ट। ये एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है ना? तो अगर ये प्रोटीन है माय डियर, तो ये प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होंगे। तो अमाइनो एसिड में प्रोलीन, प्रोलीन अमाइनो एसिड है ना? प्रोलीन अमाइनो एसिड जहां ज्यादा रहेगा, दैट इज दैट पार्ट दैट इज कॉल्ड द हिंज। की बोले? हिंज। सो दिस इज द प्रोलीन रिच पार्ट माय डियर। सो दिस पार्ट इज द प्रोलीन रिच पार्ट कॉल्ड हिंज। सो दिस इज द प्रोलीन, माने अमाइनो एसिड प्रोलीन रिच region, and this region is called hinge. আর hinge থেকে আরেকটা খুব important question my dear, the shape of the hinge will determine the shape of the paratope, क्योंकि ये है paratope, this region is the paratope, this region is the paratope। आप देखिए hinge का कर्वेचर, hinge का एंगल अगर चेंज हो गया तो paratope का शेप भी चेंज हो जाएगा। देखा चो? so hinge, the shape of hinge determines the shape of the paratope। तो एक important point, the shape or inclination of hinge determines the shape of the paratope। What is paratope? The antigen binding site on the antibody, তাই তো? What is paratope? It is the antigen binding site on the antibody। And इसी के रेफरेंस में there is another term which is called epitope, है ना? ये कहां रहता है? ये एंटीजन में रहता है जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। सो इट इज द एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन द एंटीजन। सो इट इज द एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन द एंटीजन, दैट इज एपिटोप, है तो? अब जरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपके पिक्चर में भी है, आप देखो कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी प्रोटीन अगर होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन अगर होगा, तो उसमें एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल रहेगा। तो ये मैंने एन टर्मिनल लगाया, मतलब NH2। लेकिन इधर एनसीईआरटी তে একটা জায়গায় দেখো COOH নেই। দেখো NH2 আছে কিন্তু COOH লাইট চেনে দেওয়া নেই, ওটা ভুল আছে, ঠিক করতে হবে। समझ में आया? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो एक एन टर्मिनल हो गया, एक सी टर्मिनल हो गया। एम आई क्लियर? तो ये जो पिक्चर एनसीईआरटी का है उसमें वो थोड़ा सही कर लेना बेटा, ठीक है? अच्छा, अब जरा देखिए ध्यान से, अब जरा देखिए ध्यान से, और एक चीज, हेवी चेन एंड लाइट चेन। और उसमें हेवी चेन में देखिए, सॉरी, हेवी चेन में देखिए, এগুলো কি? দিস আর জয়নিং পার্ট। দেখো হেভি है टोटल तो CH3, वाई CH कांस्टेंट हेवी, दिस इज CH2 कांस्टेंट हेवी टाइप 2, दिस इज CH1, दिस इज CH1। सो वाई CH माय डियर, इट इज कांस्टेंट हेवी। इसके तीन टाइप्स, CH3, CH2, CH1, and this is connected by this one which is joining heavy। इसको हम लोग कहते हैं JH। what is JH? it is the joining heavy। तो ये heavy joining heavy, तो देखो हेवी चेन को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट है। लेकिन ये हो गया वेरिएबल, टर्मिनल पार्ट हमेशा वेरिएबल होगा। कैनो वेरिएबल होबे? बिकॉज शेप ऑफ द एंटीजन के हिसाब से वो खुद को चेंज कर लेगा। सो
VH is the variable heavy. Why it is variable heavy? It is variable heavy because based on the shape of the antigen or conformation of the antigen, it can change its own conformation. So since it can, assertion reasoning, it can change or modify itself based on the conformation of the antibodies. तो एंटीबॉडीज के कॉन्फॉर्मेशन के आधार पे इट कैन मॉडिफाई इट्स और रेगुलेट इट्स कॉन्फॉर्मेशन, है ना? तो इट कैन रेगुलेट इट्स कॉन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज। समझ, एंटीजन समझ में आ गया? अब दैट इज वेरिएबल, ये वाला क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, যেটা আমরা খুব মিস করি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার, দিস ইজ কনস্ট্যান্ট লাইট, দিস ইজ কনস্ট্যান্ট লাইট, দিস ইজ variable light, this is variable light, and this is JL, that is joining light, this is JL, this is JH। समझ में आया? So JL is, JH is joining heavy, तो লিখেছিলাম, আচ্ছা joining light হবে, JL is joining light, है ना? আর আরেকটা হচ্ছে VL হচ্ছে variable light, वेरिएबल लाइट। ये भी तो समझ में आ रहा है, वेरिएबल चेन ये भी अपना शेप को चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द एंटीजन, है तो? अब देखिए जरा ध्यान से माय डियर, हर एक जो चेन है, ये जो हिंज वाला रीजियन है, देखिए स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? डाइसल्फाइड लिंकेज चाहिए उसको स्टेबिलिटी के लिए, तो इट रिक्वायर्स डाइसल्फाइड लिंकेजेस माय डियर, इट रिक्वायर डाइसल्फाइड लिंकेजेस बेटा। तो देखिए डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैज टू बी देयर। देखो डाइसल्फाइड लिंकेजेस, कितने नंबर ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस? 2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस। एनसीईआरटी তে এটা আছে, দুটো ডাইসালফাইড লিংকেজ। এটা পরীক্ষার কোশ্চেন, एग्जाम का क्वेश्चन है, देयर आर 2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस एट द पॉइंट एट द रीजन ऑफ द हिंज। एग्जाम का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, देखो ध्यान से। चलिए नेक्स्ट। अब और एक चीज देखिए, मजे का बात যেটা আমাদের ভুল হবে, देखो हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट्स तो डाइसल्फाइड लिंकेजेस से जुड़ा हुआ है, ये भी तो आपको पता है। इफ दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन तो इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगे, इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगे, इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगे, इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगे माय डियर। वेरी मच इन द सेम वे इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगे, इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगे, इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगे, इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, डाइसल्फाइड लिंकेजेस तो बहुत सारे हैं और डाइसल्फाइड लिंकेजेस रहेंगे माय डियर। समझ में आ गया? एंड एट द सेम टाइम आई शुड से, इधर से कार्बोनिल ग्रुप रहता है, যেটা লেখা নেই এখানে, कार्बोनिल ग्रुप থাকে, कार्बोनिल ग्रुप रिमेन्स अटैच्ड कांस्टेंट हेवीতে। कार्बोनिल ग्रुप বোঝো তো? C ডাবল বন্ডেড OH कार्बोनिल ग्रुप, যেটা খুব ইউনিক। দাঁড়াও এটা করে নি আগে। ডাইসালফাইড লিংকেজেস, ডাইসালফাইড লিংকেজেস, ডাইসালফাইড লিংকেজেস, ডাইসালফাইড লিংকেজেস। মজার কথা হচ্ছে, अब देखो the heavy chain and the light chain, they are also connected by disulfide linkages। देखो एनसीईआरटी তে the heavy chain and the light chain, they are also connected by disulfide linkages। এইখানটা দেখো, this is connected by disulfide linkage, here also this is connected by disulfide linkage। देखा आपने? लेकिन देखो लाइट चेन वेरिएबल पार्ट में डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं है। देखो पिक्चर में वेरिएबल पार्ट में डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं है, देखा आपने? एक वेरिएबल लाइट और एक वेरिएबल हेवी, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस आर एब्सेंट। when the heavy chain and the light chain will be connected, वो कांस्टेंट पार्ट पे कनेक्टेड है। देखो डाइसल्फाइड लिंकेजेस जो है वो कांस्टेंट पार्ट पे है, देखा आपने? ये एग्जाम का क्वेश्चन है माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। दिस इज प्रेजेंट इन द कांस्टेंट पार्ट, नॉट ऑन द वेरिएबल पार्ट। तो वेरिएबल हेवी और वेरिएबल लाइट के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस नहीं है, याद रखिएगा ये। सो दीज आर द डाइसल्फाइड लिंकेजेस। और डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनता कैसे है माय डियर? सिस्टीन से। वेरी गुड।
तो सिस्टीन अमाइनो एसिड रहेगा, तो उसी पोजीशन पे द पोजीशन ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन, on the polypeptide chain where cysteine amino acid is present exhibits disulfide linkages. Am I clear, my dear students? So, अब एक और पॉइंट बचा हुआ है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं माय डियर। ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड FAB, और ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड FC। FAB का फुल फॉर्म फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, that is FAB. What is FC? Yes, that is fragment crystallizable. Terminate the part which is binding to the antigen, that is considered to be FAB, fragment antigen binding. And the part which separates out after the agglutination reaction, matlab antigen antibody reaction, that is FC or fragment crystallizable. The first protein, ये दोनों FC और FAB में सेपरेट होता है ड्यूरिंग एग्लूटिनेशन रिएक्शन, दैट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड विद अ पर्टिकुलर प्रोटीन, फॉरेन प्रोटीन। तार माने मैं की बोललाम फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल एंड फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ये दोनों जो सेपरेट होता है फ्रॉम एन एंटीबॉडी ड्यूरिंग एन एग्लूटिनेशन रिएक्शन was first experimentally observed by using a foreign protein called पेपेन, PAPAIN, जो कैरी का पपाया से आइसोलेट किया जाता है। सो FC and FAB, FC and FAB were first experimentally observed by using a foreign protein, that is an enzyme called बोलो कि बोललाम पेपेन, PAPAIN, obtained from कैरिका पपाया, पपीता, समझे ना? obtained from, आपको समझ में आया मैंने क्या कहा माय डियर? এবারে আরেকটা কথা বলবো, KVPY 2016 এর क्वेश्चन, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यू नेवर नो कब पूछा जाए। If we use a compound which is called mercaptoethanol, which is preferably known as in the market commercially known as mercaptol, then उसका फंक्शन है to break the disulfide linkages. तो प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए the chemical which is used is called mercaptol. क्वेश्चनটা এটা ছিল যে এক অ্যান্টিবডি মলিকিউল को if it is subjected to the use of mercaptol, then what will happen? All the disulfide linkages will break. The antibody will become denatured. But at the same time, first step में क्या होगा? Disulfide linkages between the heavy chains and the light chains will break. And therefore, H2L2 will get separated individually. HHLL separate हो जाएगा. This was the answer to the question of KVPY. Am I clear? और ये फेमस क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन मजे का बात है NSEB में भी पूछा गया है, न कि INBO में पूछा गया है, NSEB ना INBO में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन एम्स में बहुत पहले पूछा गया था, आज नहीं, दैट वाज बैक इन 2000 के समय एम्स में पूछा गया था। और वी आर वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन नीट। समझे ना? हो ही सकता है कि नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रखिएगा, द क्वेश्चन इज mercaptol or mercaptoethanol, mercaptol or mercaptoethanol. What is this? Now mercaptol or mercaptoethanol जो है, this is actually a chemical which helps in
breaking of the disulfide linkages and denaturation of protein. तो synthetic chemical which denatures proteins by breaking the disulfide linkages. By breaking the disulfide linkages. समझे? By breaking the disulfide linkages, है ना? Mercaptol और mercaptoethanol is used. तो इस कंडीशन में फॉर ब्रेकिंग द डाइसल्फाइड लिंकेज, और इस कंडीशन में फर्स्ट H2L2 विल ब्रेक, सब सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. एम आई क्लियर? ये क्वेश्चन है, ठीक है. और बाकी एंटीबॉडी के ऊपर और कोई डिस्कशन अपन को करना नहीं है. आईजीई का नंबर इंक्रीज होता है, वो तो ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन केस बोले दीजिए एखाने আর কিছু ডিসকাস এখন করতে হবে না. एम आई क्लियर? देख लीजिए. यस सर तो कुछ झिमोची सारा दिन धरे. तो देख तुझे क्या हुआ, कल रात को नहीं सोया? थोड़ा सा मैंने मोबाइल देख रहा था, पढ़ाई कर रहा था. कितने बजे सोया? तो फिर सुबह उठ गया जल्दी? मम्मी ने उठा दिया? अच्छा किया, मारना चाहिए. ओह अच्छा, उधर कॉम्प्लेक्स में टायर्ड हो गया, सो जा. आधा घंटा सो जा, नैप ले ले पीछे बैठ के. ब्रेक है अभी, तो नैप ले सकता है. ऑनलाइन स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड. अनिक कुमार, सोमा, आरिश, तन्मय, इफ्फत, एवरीवन ध्यान से देख लीजिए बेटा. एंटी पैराटोप का जो पोजीशन है वो मैंने अलग करा. ये अंदर की तरफ करते तो ये एनसीईआरटी वाला हो जाता, मैंने नहीं करा अंदर के अंदर वाला. ठीक है. अच्छा, एनसीईआरटी में COH और NH2 सब जगह लिख दिया, क्योंकि मिस है. एनसीईआरटी में लिख दिया ना? ঘুমোচ্ছিস তুই? ও হ্যাঁ স্যার, মানে লিখেছিস? COH লিখেছিস, NH2 লিখেছিস তো? এই যে কোনাগুলোতে লিখেছিস সবকটাতে? एनसीईआरटी में सब जगह लिखा नहीं है, वही तो बोला मैंने. পরে লিখবে, থাপ্পড় মারবো গিয়ে একটা. এটা লেখ, এটা ভুল হয়ে যাবে না হলে. তো সি লিখ দে না বাবা, সি লিখ দে. এন টার্মিনাল সি লিখে দে. COH না লিখলেও চলবে, সি লিখে দাও. একটা দিকে এন, একটা দিকে সি, আবার কি? जो जगह मिस हुआ है लाइट चेन में भी शायद शायद मिस है. ठीक है. और এইখানে এই যে कार्बोनिल ग्रुप एनसीईआरटी में नहीं है, ये कार्बोनिल ग्रुप रहता है उधर. इसको देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये डन हो गया. इम्यून सिस्टम में और कुछ नहीं कहना है अपन को, जो भी कहना था वो कंप्लीट कर दिया मैंने. समझे? और दो चीज आपको जरूर पता होगा कि थाइमस एंड स्प्लीन, थाइमस एंड स्प्लीन, ये पहले भी मैंने बताया था, फिर से बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा. थाइमस, इट इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन केमिकल कोऑर्डिनेशन में लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स बी में भी होता है, लेकिन इनडायरेक्टली करता है. ह्यूमोरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है, लिखा है ना एनसीईआरटी में. आर स्प्लीन, दैट इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, क्योंकि स्टोरेज ऑफ लिम्फोसाइट, ये अगर एजर्शन है तो इसका रीजन क्या है माय डियर? स्टोरेज ऑफ लिम्फोसाइट्स. स्टोरेज ऑफ लिम्फोसाइट्स तर माने लिम्फोसाइट्स. थाइमस को छोड़ के बोन मैरो, बोन मैरो ये भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. क्यों? बिकॉज बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट्स आर सिंथेसाइज्ड. क्योंकि ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन लिम्फोसाइट्स, ये सब पढ़ाया था मैंने पहले, आर सिंथेसाइज्ड, है ना. और एक इंपॉर्टेंट चीज माय डियर, स्प्लीन को
हम लोग ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं, ये इसी में मिलता है हम लोगों को, है ना, बिकॉज आरबीसी आर स्टोर्ड। स्प्लीन, पहले तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वो तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में लिखा हुआ है। स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। এটা যদি অ্যাজারশন হয়, রিজন স্টোরেজ অফ আরবিসি, ফিল্টার্স আউট আরবিসি লেখা আছে না, ফিল্টার্স আউট আরবিসি, देयरफॉर स्टोरेज। इमरजेंसी में स्प्लीन एक्ट एज ব্লাড ব্যাংক। বুঝতে পেরেছো? পড়ায়া था मैंने বাকায়দা। আরেকটা কথা, এখানে থাইমাসের লোকেশন কি লেখা আছে? একদম নয়। दैट इज रिटन इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में लिखा है बीनीथ द स्टर्नम। কি হলো, বলতে পারলি না কেন? বিনিথ দ্য স্টারনাম লেখা আছে। মাথা নাড়ছিস কেন রে? উত্তর একটা চড় মারবো গেলে। হ্যাঁ, মাথা নাড়ার জন্য ক্লাসে বসে আছিস? बीनीथ द स्टर्नम मैंने बताया था आपको, दो पोजीशन पे। एक तो हम अगर सीधा खड़ा हो जाएंगे तो थाइमस का लोकेशन इज गिवन इन केमिकल कंट्रोल, बिहाइंड द लंग्स एटसेट्रा। হ্যাঁ, আরে তা ভেন্ট্রাল টু দিয়ে ওটা ওই ওই যেটা আছে ইন বিটুইন লাংস, ওটা যেটা আছে বিহাইন্ড দ্য স্টারনাম লেখা আছে। আর যদি শুয়ে থাকি सुपाइन पोजीशने, তাহলে बीनीथ द स्टर्नम। तो दो दो पोजीशन ऑफ द बॉडी के ऊपर दो जगह पे लिखा हुआ है। इम्यून सिस्टम में लिखा हुआ है इन द सुपाइन पोजीशन, अगर हम सोए हुए हैं बीनीथ द स्टर्नम, और खड़े हुए हैं तो उसमें लिखा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। पढ़ाई कर रहा है सब। चलो, थैंक यू।